Hello students, welcome back to our another lecture. In this lecture we are going to discuss about Henderson-Hasselbalch equation. Now to understand this Henderson-Hasselbalch equation, that is also known as HH equation, it is very important for you all the students to see previous video, to see previous lecture. In that we have discussed all the basic concepts related to this equation. Okay, that basic concepts were pH, what is pH, what is pKa, what is isoelectric point. Okay, so this all are the basic concepts before going to this main Henderson-Hasselbalch equation, that is amino acid which act as a buffer. Okay, in that only you have discussed we have discussed pH, pKa, etc. So that is your basic step to understand this equation, Henderson-Hasselbalch equation. So let's begin with this equation. Lawrence Joseph Henderson, he wrote an equation in the year 1908 describing the use of carbonic acid as a buffer solution. Later, Carl Albert Hasselbalch re-expressed the formula in logarithmic terms, resulting in the Henderson-Hasselbalch equation. Okay, so first in the year 1908, the scientist Lawrence Joseph Henderson, he wrote an equation for the carbonic acid as a use of buffer solution. ठीक है, उसके बाद उसी इक्वेशन को री एक्सप्रेस किया गया इन द लॉगरिथमिक टर्म्स. ओके, एंड हु डिड दैट? द साइंटिस्ट कार्ल अल्बर्ट Hasselbalch. Okay, and the name given is Henderson-Hasselbalch equation. What actually this equation does? This equation, it helps to calculate the pH of buffer. It can be any buffer, whether it is acidic or basic. So it helps to predict, it helps to calculate the pH of buffer. Secondly, it is used to calculate the isoelectric point of protein. Now, as I told, the basic of this equation is in the previous video. Okay, what is isoelectric point? That we have discussed in our earlier video. Okay, so it is also used to calculate the isoelectric point of amino acids or protein. So for quick revision, what we have discussed in previous video, it is necessary to revise that. So we have discussed pH. Okay, so what is pH? pH is nothing but it is negative logarithmic of H plus ion to the base 10. Okay, so it is natural. साइंटिफिक कैल्सी में log 10 आपको उसकी वैल्यू इजीली मिल जाती है. सो what is pH? pH is negative logarithmic of H plus ion. और इन्वर्सली अगर इसका रिलेशनशिप देखा जाए तो pH is inverse of H plus ion. What is pKa? pKa is negative logarithmic of dissociation constant. Okay, Ka क्या है? Ka है dissociation constant of acid. A stands for the acid and if B is there then it stands for the base. Okay, dissociation constant of base. तो अगर base का calculate करना हो तो instead of Ka there will be Kb. Getting my point? So Pk है negative logarithmic of dissociation constant. K stands for dissociation constant. तो A और B ये suffix decide करता है whether it is acid or whether it is base. Okay, so this is general introductory part of our Henderson-Hasselbalch equation और HH equation. अब ये equation कैसे derive किया जाता है ये हम देखेंगे. Okay, so one by one we are going to discuss. We will see first for acidic buffer and then secondly we will see for our basic buffer. Okay, so let's begin with acidic buffer. Now to calculate the Henderson-Hasselbalch equation for acidic buffer, अभी हमें determine करना है. As I told that it helps to calculate the pH of buffer. Then we will see first acidic buffer and then we'll go for the basic buffer. Okay, so for acidic buffer we have to consider the dissociation of weak acid. What is weak acid and strong acid? That point also we have discussed in our
प्रीवियस लेक्चर. ओके, सो वीक एसिड कैसे इंडिकेट किया जाता है? बाय द सिंबल HA, कैपिटल H कैपिटल A. ओके, सो लेट अस कंसिडर डिसोसिएशन ऑफ. डिसोसिएशन मतलब क्या? टू स्प्लिट. ओके, टू स्प्लिट. अब यहाँ पर क्या है? HA. HA इज नथिंग बट इट इज दी वीक एसिड. सो वीक एसिड क्या हुआ है? इट इज डिसोसिएटेड इनटू H प्लस, ओके, प्लस A माइनस. ओके, तो ये क्या हुआ है? डिसोसिएट हुआ है. तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है? Ka. Okay, so your Ka is the dissociation constant. Now your H plus क्या है? H plus it is nothing but acid. ओके, ये HA वीक एसिड है, तो वीक एसिड का डिसोसिएशन हुआ है इनटू H प्लस, दैट इज एसिड. लेट मी राइट, H प्लस इज एसिड एंड योर A माइनस इज सॉल्ट. ठीक है, जैसे आप मैं इसको एग्जाम्पल में बता दूं. इसका एग्जाम्पल अगर एसिड है तो वी विल कंसिडर HCl. ओके, HCl स्प्लिट होता है H प्लस प्लस Cl माइनस में, right? So hydrogen HCl is splitted into H plus ion plus Cl minus ion. So your H plus is your acid and Cl minus, that is A minus, is your salt, not base. ये हम यहाँ acid consider कर रहे हैं, तो ये split होगा salt में. ठीक है, acid and salt. और अगर base है तो base and salt. Getting my point? So here H plus is acid and Cl minus is your salt. Why I am repeating the point? Just to clear you, because this Henderson-Hasselbalch equation is very important point. Okay, तो यहीं पर clear कर लीजिए. तो इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka है, इसे हम बाय द फॉर्मूला कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Ka, that is dissociation constant for acid, is equal to H plus into A minus. ये आपका H plus into A minus upon HA. ठीक है, मीन्स स्प्लिटेड अपॉन वी कैन से प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. ऐसे आप बोल सकते हो कि प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो प्रोडक्ट स्प्लिट हुआ है इंटू H प्लस एंड A माइनस अपॉन HA. सो दैट इज योर डिसोसिएशन कांस्टेंट. यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं Ka, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट. ओके, सो लेट मी, अभी हम इसे डिराइव करेंगे. ओके, वी विल डिराइव द वैल्यू फॉर द acidic buffer, और we can say Henderson-Hasselbalch equation for acidic buffer. तो कैसे करेंगे हम? This HA will go here. ओके, तो जब ये यहाँ जाएगा तो इट विल मल्टीप्लाई. तो क्या होगा? Ka इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA, दिस ब्रैकेट इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन. ओके, तो Ka इंटू HA इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस, दैट इज योर सॉल्ट. ठीक है, सिर्फ क्या किया है? दिस डिनोमिनेटर व्हेन इट कम्स टू दिस साइड इट मल्टीप्लाइज. ओके, तो अभी हमें इक्वेशन किस लिए चाहिए? वी वांट द इक्वेशन फॉर एसिड. H प्लस हमारा क्या है? एसिड. तो मैं H प्लस साइड में लेकर जाऊंगी, तो इक्वेशन हमारा बनेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू Ka इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस. ओके, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, हम इसे बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1. क्या किया है? हमें डेरिवेशन चाहिए था एसिड के लिए. एसिड कौन सा है आपका? H प्लस. सी, व्हेन यू आर टेलिंग एसिड, एसिड मीन्स इट रिलीजेस प्रोटॉन, इट रिलीजेस H प्लस आयन. तो यहाँ पर H प्लस आयन है, सो ये एसिड है. एसिड इज इक्वल टू Ka इंटू HA अपॉन A माइनस. ये तो कॉमन मैथमेटिकल लॉजिक है. ठीक है, तो इसे हमने दिया है इक्वेशन 1. लेकिन जो नेक्स्ट साइंटिस्ट था, कार्ल अल्बर्ट हैसेलबल्च, दिस साइंटिस्ट ही रीएक्सप्रेस द फॉर्मूला इन द लॉगरिथमिक फॉर्म. राइट, हमने देखा कि उसने इक्वेशन लॉगरिथमिक फॉर्म में रीएक्सप्रेस किया है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन द नेक्स्ट स्टेप डेफिनेटली व्हाट वी विल टेक? वी विल टेक लॉग. ओके, सो टेकिंग और टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स. क्या करेंगे हम? लॉग लेंगे ऑन बोथ दी साइड, मीन्स हियर ऑल्सो लॉग एंड हियर ऑल्सो लॉग. तो हमारा इक्वेशन 1 कैसे बन जाएगा? इट विल बी समवॉट लाइक दैट. लॉग H प्लस इज इक्वल टू लॉग, इट्स वेरी सिंपल, लॉग Ka, ब्रैकेट में मैं इसे लिख देती हूँ सो दैट इट विल बी मोर सिंपल. ओके, लॉग Ka इंटू
concentration of HA upon concentration of salt and your whole bracket is complete. क्या किया है मैंने? टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स. अभी हमें पता है कि लॉग का फॉर्मूला है. अब ये टर्म कैसी है? के ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच ए अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस. ओके, तो हमने ये फॉर्मूला देखा होगा लॉग ए इंटू बी. ठीक है, लॉग ए इंटू बी. अब यहाँ पर ये लॉग है, के ए क्या है? के ए इज योर ए और ये पूरा टर्म क्या है? इट इज बी. सो क्या फॉर्मूला बनता है लॉग ए इंटू बी का? व्हाट इज दैट? वी नो दैट log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b. ठीक है, तो log a प्लस log b, इसी फॉर्मूला को हम अरेंज करेंगे. ठीक है, ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन को हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे. तो हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा? log h प्लस इज इक्वल टू log, सेपरेटली वी विल टेक log के a, यहाँ पर प्लस आएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, प्लस log concentration of HA upon concentration of A minus. I hope you are with me and you are getting my points. क्या किया है हमने? log ये A है, ये B है. ओके, सो A into B is log A into B is log A plus log B. In previous standards you might have discussed this formula. तो क्या होता है वो? log के A plus log HA upon A minus. ओके, सो अब आगे हम क्या करेंगे? लेट मी शो यू फर्दर. तो ये इक्वेशन हमें मिला है. अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे? ये इक्वेशन में यहाँ लिख देती हूँ. हमें इक्वेशन मिला था log h प्लस इज इक्वल टू log के ए प्लस log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच ए अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस. ठीक है, हमें मिला था ये इक्वेशन, राइट? यही इक्वेशन जो हमें प्रीवियसली मिला है वो मैंने यहाँ पर लिखा है. तो अब हम क्या करेंगे इन द नेक्स्ट स्टेप? वी विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय माइनस साइन. ओके, हमें क्या करना है? वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय निगेटिव साइन और माइनस साइन. तो हमें क्या मिलेगा? माइनस ऑन बोथ साइड्स. ओके, सो माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए. ये प्लस है, क्या हो जाएगा? माइनस. ओके, बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस लॉग एच ए अपॉन लॉग ए माइनस. ओके, तो हमने क्या किया है? दोनों साइड्स माइनस से मल्टीप्लाई किए. सो नाउ वी नो, हमें क्या पता है? वी नो व्हाट वी नो? वी नो दैट माइनस लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल टू PH, राइट? प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया और अभी भी मैंने आपको बेसिक बता दिया था कि PH और pKa क्या है. तो PH क्या है? निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन. मैंने आपको प्रीवियस बता ही दिया था. देखिए, वी हैव डिस्कस्ड हियर. पीएच क्या है? पीएच इज इक्वल टू निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन. और पीके क्या है? निगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka. सी, टू द बेस्ट 10 इज नॉट बीन कंसिडर्ड. ओके, सो पीके इज माइनस लॉग ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट. तो यहाँ पर पीएच आपका निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस है और आपका पीके क्या है? pKa इज निगेटिव लॉगरिथम ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट. तो ये आपको पता है, राइट? सो इट इज योर pKa. तो डायरेक्टली हम इसके जगह pH लिख सकते हैं और इसके जगह हम pKa लिख सकते हैं. ओके, सो हम वही करेंगे. pH इज इक्वल टू pKa माइनस, बाकी का तो सेम है, माइनस लॉग ऑफ HA अपॉन लॉग ऑफ A माइनस. ठीक है, अब आप सोचेंगे यहाँ पर माइनस साइन क्यों नहीं लिखा है? बिकॉज सी हियर माइनस इज देयर, माइनस माइनस, तो ये माइनस ही कंसिडर किया. ओके, इट इज नॉट प्लस. निगेटिव लॉगरिथम पीएच है, तो ये पूरी होल टर्म ही पीएच है, तो निगेटिव साइन कंसिडर नहीं किया जाएगा. ठीक है, सो पीएच इज इक्वल टू दिस निगेटिव इज मीन्स विद दिस निगेटिव this equation is been considered as pH, and with this negative this equation is considered as pKa. So pH equal to pKa minus, as it is this log of HA upon concentration of A minus. तो ये आपका इक्वेशन बन जाता है. ठीक है, यहाँ पर
एच ए क्या है, एच ए इज योर एसिड एंड ए माइनस क्या है आपका, ए माइनस इज योर सॉल्ट. ओके, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं पी एच इक्वल टू पी के ए माइनस लॉग ऑफ एसिड अपॉन सॉल्ट. ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं. अगर हमने इसे इन्वर्स किया, मीन्स इफ यू टेक द रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल और यू कैन से टेकिंग इनवर्स, तो जब आप रेसिप्रोकल लेते हैं तब क्या हो जाएगा, दिस माइनस विल कन्वर्ट इनटू प्लस और सॉल्ट ऊपर चला जाएगा. ओके, जो डिनोमिनेटर में सॉल्ट इट विल गो टू द न्यूमरेटर एंड योर इक्वेशन विल बिकम पी एच इक्वल टू पी के ए प्लस log of concentration of salt upon concentration of acid. राइट, जब आप इनवर्स लेते हो तब साइन भी चेंज हो जाता है. सो दिस इज योर फाइनल Henderson-Hasselbalch equation for calculation of pH for weak acid. ठीक है, तो ये है आपका Henderson-Hasselbalch इक्वेशन. वी आर जस्ट कंसिडरिंग वीक एसिड, नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड. ओके, क्योंकि वीक एसिड ही डिसोसिएट हो सकता है और डिसोसिएशन कांस्टेंट दे सकता है. ठीक है, सो दिस इज योर इक्वेशन फॉर Henderson-Hasselbalch फॉर कैलकुलेशन ऑफ पीएच फॉर वीक एसिड. तो आप मैथमेटिकली को अगर आपको वैल्यूज़ पता होंगे तो आप इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ डाल सकते हैं और पीएच डिटरमाइन कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी फॉर एसिड. नाउ वी विल कंसिडर फॉर बेस. ठीक है, अब हम कंसिडर करेंगे बेस के लिए. सो इट्स सेम, इट्स समवॉट सिमिलर. ओके, सिमिलर है, सिर्फ यहाँ पर H प्लस की जगह क्या आ जाएगा, OH माइनस. ठीक है, सो लेट्स गो विथ बेसिक बफर. ठीक है, सो लेट अस कंसिडर डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस. वीक बेस कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, B स्टैंड्स फॉर बेस एंड OH दैट इज योर हाइड्रोक्साइड आयन. एसिड में H प्लस था, यहाँ पर OH है. ठीक है, तो अगर इसका हम स्प्लिटिंग देखेंगे, डिसोसिएशन देखेंगे, तो इसका डिसोसिएशन आता है यहाँ पर आप लिख सकते हैं KB दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस. ओके, बेसिक बफर हम देख रहे हैं, तो इसका जो स्प्लिटिंग होगा इट विल बी BOH स्प्लिट इनटू B प्लस प्लस OH माइनस. अगर मैं इसको एग्जांपल के जरिए बताऊँ तो NaOH आपका बेस है, जब ये स्प्लिट होता है इट विल स्प्लिट इनटू Na प्लस एंड OH माइनस. ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सॉल्ट है और बेस, यहाँ पर बेस आपका है, व्हाट इज योर बेस, योर बेस इज OH माइनस. ठीक है, बिकॉज H प्लस जब आता है इट इज योर एसिड, OH माइनस जब आता है तो बेस. ओके, और आपका यहाँ पर सॉल्ट जो है, व्हाट इज योर सॉल्ट, डेफिनेटली योर सॉल्ट इज दिस B प्लस दैट इज Na प्लस. ओके, प्लस है, सॉल्ट है. ओके, सो this is your base and this is your salt. Just keep in mind when acid is there it releases proton that is H plus. Okay, acid H plus and base OH minus. So यहाँ पर आपका base OH है, salt B plus है, that is your Na plus. Same as that of the acidic buffer, just there is difference between H plus and OH minus. तो ये वैसे ही हम calculate करेंगे. So let's begin. I hope you are with me. तो base dissociation constant, base डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है आपका, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय KB. ओके, सो KB इज इक्वल टू क्या आएगा, आप कैपिटल B भी लिख सकते हैं, तो वी विल जस्ट राइट कैपिटल B इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्मॉल b बिकॉज, और यू कैन राइट स्मॉल b, डिपेंड. तो कैपिटल B इज इक्वल टू सेम B प्लस इंटू OH माइनस अपॉन BOH, ऐसे ही हम लिखेंगे. तो B प्लस इंटू OH माइनस अपॉन BOH, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH. ओके, सो रेट ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया अपॉन रिएक्टेंट, सेम एज दैट ऑफ द एसिड. इसे हम यहाँ लेकर जाएंगे तो इट विल मल्टीप्लाई KB into concentration of base hydroxide is equal to concentration of B plus into OH minus. ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, here we have to find base. और यहाँ पर आपका बेस कौन सा है, OH. वहाँ पर आपको एसिड फाइंड करना था, इसीलिए आपने H प्लस लिया था. यहाँ पर आपको बेस फाइंड करना है तो आप OH लेंगे.
सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH इज इक्वल टू, कैसे होगा आपका इक्वेशन, Kb इंटू BOH अपॉन B प्लस, इक्वेशन सिर्फ रीअरेंज किया है फॉर द बेस, दिस इज योर इक्वेशन 1. गेटिंग माई पॉइंट, ये आपका इक्वेशन 1 है. तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, यू विल टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स, सेम एज दैट ऑफ द एसिड. सो टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स. कैसे होगा आपका इक्वेशन, फिर आपका इक्वेशन किस तरीके से बनेगा, लेट मी टेक डिफरेंट पेज. ठीक है, तो हमने लॉग लिया है ऑन द बोथ साइड, सो इट विल बिकम लॉग ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू लॉग ऑफ Kb, let me write in bracket, okay, Kb into concentration of BOH upon concentration of B plus, okay. तो ऐसा आपका इक्वेशन बन जाता है, ओके, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स. हमने सिर्फ क्या किया है, जो आपका ये इक्वेशन था यहाँ पर लॉग ऐड किया है और यहाँ पर लॉग ऐड किया है, ओके. सो जस्ट टेकिंग लॉग ऑन दी बोथ साइड्स. अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वी विल गो. व्हाट इज योर फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला क्या है, लॉग A इंटू बी इज इक्वल टू लॉग A प्लस लॉग B. तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन अरेंज करेंगे, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा लॉग ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू लॉग ऑफ KB प्लस ये लॉग एंड देन दिस लॉग, ओके. सो लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस. ठीक है, हमने सेपरेटली लॉग ले लिया है. उसके बाद हमने क्या किया था, वी हैव मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय निगेटिव साइन, ओके. सो मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय निगेटिव साइन, तो हमारा इक्वेशन कैसे बन जाएगा, ऑन बोथ द साइड्स, ओके. तो माइनस लॉग ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KB प्लस है, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, लॉग BOH अपॉन B प्लस. ठीक है, सिर्फ हमने क्या किया है, दोनों साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई किया है. ठीक है, सो दिस इज आवर इक्वेशन. नाउ वी नो व्हाट वी नो, हमें पता है, क्या हमें पता है, वी नो माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH इज इक्वल टू, क्या होता है आपका वो, pH, राइट. आपका वो होता है pH, निगेटिव लॉगेरिथम ऑफ, अब देखिए निगेटिव लॉगेरिथम ऑफ H प्लस आयन हो गया आपका pH, राइट. निगेटिव लॉगेरिथम ऑफ, जो हमने एसिड में देखा, निगेटिव लॉगेरिथम ऑफ H प्लस इज योर एसिड. लेकिन अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है निगेटिव लॉगेरिथम ऑफ OH, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, निगेटिव लॉगेरिथम ऑफ OH इज योर POH. ठीक है, मतलब pH है लेकिन किसका है, बेस का है. ठीक है, और ये जो निगेटिव लॉगेरिथम ऑफ KB है, ये आपका क्या है, निगेटिव लॉगेरिथम ऑफ K, जो हमने एसिड में देखा, निगेटिव लॉगेरिथम ऑफ Ka इज योर pKa. तो यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव लॉगेरिथम ऑफ Kb इज योर pKb, राइट. जो वो वैल्यूज हमने देखी थी pH और pKa के बारे में, सिर्फ यहाँ पर वो एसिड था, इसीलिए वी हैव टेकन द A, दिस इज बेस, सो pKb एंड हियर बेस OH इज देयर, ओके. सो हमने क्या लिया है, pH की जगह POH. गेटिंग माई पॉइंट, वहाँ एसिड था जो सिर्फ H और A लिया, ये बेस है, तो OH एंड KB, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर B. तो हम क्या करेंगे, इसके जगह सिर्फ ये वैल्यूज पुट अप करेंगे, ओके. सो आवर इक्वेशन विल बिकम समवॉट लाइक दिस, POH to the upside is equal to PKB minus ये same as it is log BOH upon log B plus. ठीक है, तो ये भी आप एज अ हैंडरसन हैसलबर्च इक्वेशन कंसिडर कर सकते हैं. तो यहाँ पर आपका BOH क्या है, POH इज योर बेस. ठीक है, या फिर आप OH बोले, जो भी. एंड योर सॉल्ट क्या है आपका, आपका सॉल्ट है B प्लस. तो आप इसके जगह ये लिख सकते हैं, मतलब POH इज इक्वल टू PKB माइनस BOH क्या है आपका,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस है, राइट. सॉरी, लेट मी राइट लॉग. लॉग बेस अपॉन बी प्लस आपका क्या है, इट इज योर सॉल्ट. तो ये आपका इक्वेशन बन जाता है. सो वी हैव टू टेक इनवर्स. ओके, हमें इनवर्स लेना है या रेसिप्रोकल लेना है. तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगा, यही लिख देती हूँ मैं. टेकिंग इनवर्स और टेकिंग रेसिप्रोकल, तो आपका इक्वेशन बन जाता है समवॉट लाइक दिस. POH इक्वल टू, इसी का इनवर्स ले रही हूँ मैं दिस इक्वेशन का. POH इक्वल टू PKB. ओके, इनवर्स माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस log of salt upon concentration of your base. So this is your final Henderson-Hasselbalch equation for calculation of base. Okay, weak base, for calculation of weak base. तो हमने दो इक्वेशन देखे फॉर एसिड एंड फॉर बेस. ओके, तो एसिड के लिए क्या था, एसिड का इक्वेशन आपका कुछ इस तरीके से था. pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड. और आपका बेस का क्या है, बेस का आपका है POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस. ये लॉग है, ठीक है. तो ये है आपका बेस के लिए. क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, डिफरेंस इज वेरी सिंपल. pH एसिड, यहाँ POH बेस, pKa फॉर द, pKa इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड. यहाँ पर क्या है PKB. इवन आप नीचे भी लिख सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको ऊपर ही लिखना है. इट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस. ओके, लॉग एज इट इज, सॉल्ट एज इट इज. यहाँ पर ये एसिड के लिए इसीलिए एसिड. ओके, यहाँ बेस के लिए इसीलिए डाउन साइड बेस. सो दिस इज वेरी सिंपल इक्वेशन फॉर of Henderson-Hasselbalch equation for calculation of weak acid and weak base. Okay, so I hope आपको ये equation समझ आ गया होगा. In next lecture we will discuss our next point. Thank you.